कितने क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में टीए से रिलेटेड पूछे गए थे? द बिगेस्ट फियर फॉर मोस्ट ऑफ द टेस्टर्स इज टू राइट कोड. ठीक है. How do you tackle that kind of stuff? How many questions do you practice in a day? और कुछ करते हो कि क्या तुम्हारा टेक्निक क्या होता है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लूँ कोडिंग के लिए? What kind of question do you feel are always the repetitive questions? Like, of course, tell me something about yourself, your framework. These are going to be repetitive. But apart from that, like framework को छोड़ दो, tell me something about yourself को छोड़ दो, but you will still find कि coding के कुछ questions है जो हमेशा repetitive भी आता है. Hey friends, welcome back to the class and I hope you guys are doing pretty good. So कुछ दिन पहले I was having a discussion with one of my ex-student, Kajal. She has 5 years of experience in manual and automation testing. So this discussion is about how she was able to change the job, okay, having a 2 months notice period. कौन से कंपनीज में उन्होंने अप्लाई किया था, कौन से क्वेश्चंस उनको पूछे गए थे. ऑल्सो आई ट्राई टू आस्क व्हाट वाज हर स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज. ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट भी करके रखती हैं. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन शुड हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू फास्टर. ऑलराइट, सो आई होप आपको ये कॉन्वर्जेशन पसंद आए. यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ discussion, and do let me know if these kinds of videos are helpful for you guys. Also, अगर आप लोगों ने recently कोई interviews दिए हैं, do share the questions in the discussion section of the videos or in the SZ Accelerator group. I would be happy to cover it off in the upcoming logic building or in the interview preparation videos. All right. So I hope ये session आप लोगों के लिए useful हो. So, Kajal, see, I know you have been giving a lot of interviews recently. So, okay, and you have cracked a lot of interviews. Tell me which all companies you have given the interview recently. I have appeared for JP Morgan and Tata AIG, Russell Investments, Taurus Financial. There was one startup from Reliance Group, and I don't remember, but there was one more. Yeah, Booking.com also. Oh, Booking.com. Goregaon. Wait, Priceline. No, Priceline, but location Bangalore का था. Bangalore, okay. So, अभी ये जितना आपने ये interviews दिया है, like you have, if before the start of this particular session we were just talking, you have given like around 8 interviews, okay? Yeah. And जब भी आप interview देते हो, there are certain things that you are able to answer, there are certain things you are not able to answer, ठीक है? लेकिन अगर interview में कोई आपको पूछता है कि यार, let's say they ask you very a kind of a question which you are not aware of, so how do you answer that kind of a question? Sometimes I say कि मुझे नहीं पता. I just be straightforward. And अगर मुझे थोड़ा भी पता होता है तो I just answer them and tell them कि मुझे इतना ही knowledge है. So और मेरा hands on भी नहीं है ये जो question जिस topic पे है, but I am aware about the topic. But do you put it in your resume also, like just for your resume to get selected? Let's say I know that you have been doing playwright lately. Yeah. अपने resume में डाला है क्या आपने? मैंने actually नहीं डाला है, but if there is a requirement कि उनको specifically playwright के लिए चाहिए तो मैं डाल देती हूँ. Okay. And you always try to customize your resume for every company that you're applying for? Not every company, but if there are some certain requirements from the company, like जैसे मैंने अभी आपको बताया कि they are specially looking for playwright using TypeScript या JavaScript, तो language के लिए तो मैं change नहीं करती, but हाँ skills जैसे playwright हुआ एकदम new framework तो I add that. तो mostly मैंने 1-2 बार ही modification की होगी. Okay. So okay, that's good. Now, I remember like when you were joining this particular course, the first thing that you asked was कि बाबा TSA cover कर दो क्या? So my question to you guys is, you over here is कि कितने questions आपको interview में TSA related पूछे गए थे? अभी अगर आप पूछोगे तो TSA is very vast, तो जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं वो बेसिकली DSA तो नहीं होते, बट बहुत बेसिक क्वेश्चंस जो हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, like that we should know, like find the second maximum number, or there is a string, we have to find the repetition of some characters. Okay, string repetition, common prefix, common suffix. Yeah, and sometimes they ask for prime number also.
Prime number? हाँ, like logic implementation या verbally explain करो. Verbally explain karo. Okay. So when you're writing the code, like how do you approach it? Let's say कि, you know that the biggest fear for most of the testers is to write code. ठीक है. How do you tackle that kind of stuff? How many questions do you practice in a day? और कुछ करते हो कि क्या तुम्हारा टेक्निक क्या होता है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लूँ कोडिंग के लिए? ओके, और इनिशियली तो मैं चीज़ें मगअप करती थी, लाइक लिटरली मैं वो होता है ना, इंसान रट्टा मारता है, वैसे वाली मैं करती थी. लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे मुझे याद रहने वाली हैं. बट मैंने अपने फ्रेंड के साथ एक्चुअली स्टार्ट किया था कि वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स टुगेदर. एंड इवन एक छोटा सा प्रॉब्लम हमें 1 आवर लगा था. तो लाइकवाइज जस्ट फॉर इंटरव्यूज मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, जहाँ पे एवरी वीकेंड मतलब मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठती थी, वर्चुअली ही, नॉट फिजिकली, एंड वी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स टुगेदर लीड कोड पे. Peers is always something that always help, right? बिकॉज समटाइम्स उसको सॉल्यूशन मिल जाता था या मुझे मिल जाता, तो वी यूज्ड टू एक्सप्लेन ईच अदर थिंग्स. या कभी कभी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाता था तो हम स्क्रीन शेयर करके डिस्कस भी कर लेते थे कि ऐसा कर सकते हैं या दिस शुड बी द करेक्ट वन. Okay. And have you seen any kind of a reputation like आपने JP Morgan में दिया, Tata AIG में दिया, Taurus में दिया, Booking में दिया, and I think so Russell में दिया. What kind of question do you feel are always the repetitive questions? Like, of course, tell me something about yourself, your framework. These are going to be repetitive. But apart from that, like framework को छोड़ दो, tell me something about yourself को छोड़ दो, but you will still find कि coding के कुछ questions है जो हमेशा repetitive ही आता है. या एक डेटाबेस का है which was find the second maximum salary of employee, and second is find the second maximum number. ये मुझसे टाटा AIG में भी पूछा गया था एंड रसल इन्वेस्टमेंट्स में भी पूछा गया था. Second maximum number from an array. Okay. Yeah, Okay. and usually exceptions in Selenium and Java. Exceptions. Yeah. Yeah. What is the like kind of an exception they ask? Like runtime, what are the different exceptions that you have faced in your projects and all those things? Or directly in your framework? It depends. Sometimes they ask कि Selenium में कौन से exceptions होते हैं, या what type of exceptions have you faced in your framework. So ये common questions हैं. What type of exceptions you have faced in your framework till now? Like you have worked in both like Selenium, Java, Playwright and all. Stale element. Stale element हो गया. Okay. And what else? Element not found. Okay. And Timeout. timeout exception. When does timeout exception come? इंटरव्यू चल रहा है ना, ले लो इंटरव्यू. They're just asking you over there. Obviously, when you are using your WebDriver base, right? So timeout exception उसमें आ जाएगा. All right. Okay. So, okay. और UPS concepts भी है जो सभी कंपनीज पूछती है. UPS related questions. What is inheritance, abstraction? Okay. हाँ. Like OOPS concept, when they asked about like where you have implemented OOPS, or like what are the directly they're going to ask like. So question differ from company to company. Sometimes they ask you to explain the OOPS concept. They will particularly mention कि inheritance explain करो, encapsulation explain करो. Sometimes they will ask you to write the syntax for that. How will you implement? Sometimes they will ask कि तुमने अपने framework में कैसे implement किया है उस चीज़ को. And why are you using that? What is the use of using inheritance or abstractions? Interface. And like why are we having abstractions? Why are we having inheritance when we already have abstractions? Not inheritance, encapsulation, interfaces, right? Okay, interfaces. Why do you do inheritance when you can do you can implement something with interfaces? Abstraction क्यों है? Okay. That is one thing. Now, what I have always seen is like most of the interviews are always going to be scenario-driven questions, right? Yeah. And sometimes what happens when people are learning automation,
ठीक है, उनको वो प्रैक्टिकल आइडिया नहीं होता है कि बाबा इस चीज को मैं कहाँ पे यूज करने वाला हूँ, या हाउ will I have a particular kind of a situation where automation will come into picture, or a certain kind of a scenario will occur. Now, what are the different scenario-driven questions which you have faced, or you'll suggest students की or people की like ये तो पढ़ के चले जाओ इंटरव्यू के लिए, ये तो पूछा ही जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस होता है जो तुमको लगता है कि यार अभी तक पूछे गए हैं और आमतौर पे रिपीट होते जाएंगे? मोस्ट कॉमन है कि they will open some page, let's say they will open a login screen in front of you and they will ask you कि इस पे आप कौन सी टेस्टिंग कर सकते हो, like we have multiple types of testing, right? Accessibility testing, UI, and तो when I used to give interview, मैं अपना limitations रखती थी कि UI ही एक्सप्लेन करती थी कि UI में हम लोग ये कर सकते हैं, बट इंटरव्यूअर का एक्सपेक्टेशन होता है कि आप उसमें सिक्योरिटी टेस्टिंग कवर करोगे, API टेस्टिंग भी कवर करोगे, डेटाबेस टेस्टिंग भी कवर करोगे, एंड एक्सेसिबिलिटी भी कवर करोगे. बिकॉज एक बार मैंने जस्ट उनको UI का ही बताया था कि वी विल ट्राई विथ इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स, बट लेटर ही सेड कि अगर ब्राउज़र टेस्टिंग भी कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट ब्राउज़र्स पे वो वर्क कर रहा है, तो उनका एक्सपेक्टेशन सिर्फ UI तक नहीं होता, वो क्लियरली क्वेश्चन नहीं रखेंगे कि आप किस टाइप के टेस्टिंग करोगे. दे विल जस्ट आस्क कि आप क्या क्या टेस्ट करोगे, एंड ये हम इम्प्रेशन आ जाता है कि वो सिर्फ UI के लिए पूछ रहे हैं, बट वो सभी पॉसिबिलिटीज पूछ रहे हैं, लाइक UI, ब्राउज़र, एक्सेसिबिलिटी, डेटाबेस, API. बट इन दिस करंट सिनेरियो डू यू थिंक कि सिर्फ सेलेनियम वेब ड्राइवर करके जॉब चेंज हो सकता है? Just knowing UI automation, you will be able to change the job, or you need to have a holistic knowledge of all the different areas of testing, and particularly from automation. If you have experience in Selenium, okay, that's not enough. But अगर आपका like hands-on practice नहीं है, you should at least know कि वो चीज़ अगर मुझे करनी है तो कैसे करनी है. जैसे as in let's say कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे कर सकते हैं. इवन तो आपने नहीं किया है, बट एटलीस्ट यू शुड एटलीस्ट एक छोटा सा POC कर लो, प्रूफ ऑफ कांसेप्ट इंप्लीमेंट कर दो छोटी सी वेबसाइट पर, बस थोड़ा सा कुछ इंप्लीमेंट कर दो, एंड दैट्स स्मूथ. लाइक आपके कोर्स में मैंने EC2 इंस्टेंस, RDS इंस्टेंस ये सब बनाना सीखा था. उसके पहले आई हैड नो आइडिया कि वो सब क्या होते हैं. तो इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं कि आप अपने आप को स्केल अप रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हो. तो आई यूज़ टू मेंशन कि मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया है जहाँ पे डेवऑप्स एक्टिविटीज़ भी मुझे पता है, जबकि हमारे करंट ऑर्गेनाइजेशन में डेवऑप्स की अलग टीम है. लाइक आई यूज़ टू वर्क विथ मॉर्निंग स्टार, तो वहाँ पे डेवऑप्स का अलग ही एक टीम था. तो आई यूज़ टू मेंशन कि मुझे ये सब चीज़ें पता है, apart from Selenium, Java, API automation, REST assured and all. And Playwright का भी मेरा hands on सिर्फ 3 to 4 months का है, but I used to mention कि I got a chance to work with Playwright also. तो it's better कि आप सिर्फ Selenium तक limited नहीं रहो, आप दूसरे opportunities भी explore करो. But do you still get like now तो you have already changed the job, and if I'm not, you were having 2 months notice period. बट ये जो 2 months का नोटिस पीरियड था जिसमें आई नो दैट कि लाइक अरे 2 महीना नोटिस पीरियड है, कॉल्स नहीं आ रहे हैं. हाउ डिड यू हैंडल दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन? बिकॉज आई नो दैट यू स्टिल गेट जॉब कॉल्स बिकॉज यू रिसेंटली वे चेंज द कंपनी, यू आर स्टिल गेटिंग जॉब कॉल्स एंड ऑल. बट जिसका जैसे 2 months है, 3 months नोटिस पीरियड है, अगर हमको या आपको उनको टिप देना है कि ये 3 महीने के लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, हाउ यू गोना प्रिपेयर फॉर let's say 3 months completely for interview perspective, not like, because you know that I know that you have learned automation, and in your current organization, even you joined as an automation tester, you're currently doing manual work, right? Yeah. Initially manual work. But the point is कि जब आप interview देते हो, पूछा जाता है full तोड़ू questions, okay? Then जब पहुँचते हो तो बस आप flow घुमा रहे रहते हो कि भाई ये चल जाए, वो चल जाए, right? But the point is, अब जैसे मेरे पास 3 महीना है, let's say if I have to change the job in 3 months, technically let's give it 90 days over here.
what would be your strategy? कि like, you're gonna give me tips कि यार इस पे पढ़ना स्टार्ट कर ले, ये वाली चीज को कर लेना, फिर उसके बाद इस पे चले जाना, इतने सारी चीजें होती है वो देख लेना फटाफट. Okay, so basically, there was some question bank from you only. I used to study. Yeah, I used to study from that. And 3 months का notice period जो आपने पूछा, उसकी वजह से मैं already एक बार reject हो चुकी हूँ from JP Morgan. And you won't believe, मैंने वहाँ पे 3 बार interviews दिए हैं, but फर्स्ट टाइम जो मेरा रिजेक्शन हुआ था, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ नोटिस पीरियड, एंड वो भी सिर्फ 15 डेज के लिए. मेरा नोटिस पीरियड 60 डेज का, एंड दे आस्क्ड मी कि वेदर आई विल बी एबल टू जॉइन विद इन 45 डेज और नॉट. दे थॉट कि आई एम लाइंग एंड दे रिजेक्टेड मी. एंड बट मुझे सेकेंड अपॉर्चुनिटी के लिए भी सामने से अच्छा से ही कॉल आया था कि आपका इंटरव्यू फर्स्ट अच्छा था, एंड ऑन दैट बेसिस वी आर गिविंग दी सेकेंड चांस टू अपीयर फॉर सम अदर टीम. ओके, सो नोटिस पीरियड आई गेस दैट वुड बी अ चैलेंज, बट नौकरी पे मैंने वो डाल रखा था कि माई नोटिस पीरियड इज ऑफ 1 month unless and like until I get the of at least one offer, and so that I can resign from my current organization. Okay. Get one from anywhere just so that you have a backup option and then you want to put it off, Yeah, paper off, right? yeah. So once you get one offer at least in your hand, you are free to resign from your current organization, right? तो वैसे ही मुझे फर्स्ट ऑफर टाटा आईआईजी से मिला था, इवन तो आई वाज ऑन वेकेशन. मैंने वो इंटरव्यू भी जयपुर में दिया था. एंड टाटा AIG में कोडिंग राउंड हुआ था आपका? हाँ, सेकेंड मैक्सिमम जो क्वेश्चन बताया वहाँ वो. से पूछा था, वहीं से पूछा था. एंड यू नो लाइक जैसे भी अगर मैं मॉर्निंग स्टार पे मैं बस आपसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ, मॉर्निंग स्टार में यू हैव डन मैनुअल टेस्टिंग, यू हैव डन लिटिल बिट ऑफ ऑटोमेशन. क्वेश्चन. Yeah. Sometimes what happen ki like people really don't know कि बाबा how do you explain your day-to-day activities or how do you tell the challenges that you have faced in your projects. Okay. अब मुझे बस आप अपना एक्सपीरियंस बता दो कि जब आप मॉर्निंग स्टार में काम करते थे, what was your day-to-day activities, as simple as that. Okay. Okay. तो see, day to day तो usually people will start कि I used to check my mails first and then I attend stand up call. बट मैं स्प्रिंट वाइज के जाती थी, स्प्रिंट वाइज के बेसिस पे कि इट्स नॉट अबाउट डे टू डे एक्टिविटीज़, बट वो पूरा ऐसे हो जाता कि रिलीज क्या है, रिलीज प्रोसेस क्या है, या आपका वहाँ पे प्रोसेस कैसे चल रहा है. तो आई यूज टू से कि हमारा एक रिक्वायरमेंट आता था फ्रॉम प्रोडक्ट, एंड वी यूज टू हैव अ ग्रूमिंग सेशन ऑन दैट, एंड बेस्ड ऑन द ग्रूमिंग सेशन वी यूज टू स्टार्ट राइटिंग टेस्ट केसेस, मैनुअल टेस्ट केसेस, and once we are done with the manual test cases, we used to send them to developers and product also, so that they can review and ask us to add more details. You used to give your manual test cases to your developer. Yeah, developer and product also. Because yeah, sometimes what happen कि developer से कुछ implementation में miss हो जाता है. He can refer our test cases that what we are going to test. ad hoc टेस्ट तो वो अलग पार्ट है, बट एटलीस्ट पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी आपको है वो वी यूज टू गिव टू डेवलपर. सो कमिंग टू डे एक्टिविटीज, वी यूज टू हैव अ डेली स्टैंड अप इन द मॉर्निंग, एंड वी यूज टू मेंशन कि हमारे पास कुछ ब्लॉकर्स है या व्हाट वी वर्क यस्टरडे, व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन टुडे. एंड देन वंस द स्टैंड अप इज कंप्लीट, वी यूज टू स्टार्ट विद आवर मेल चेकिंग थिंग एंड ऑल, एंड फर्दर एक्टिविटीज़ लाइक आज का मेरा टास्क होगा, जैसे मुझे मैनुअल कोई टिकट मेरे पे असाइन हुई है. यार मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? अब जैसे आपने मॉर्निंग स्टार में काम किया था, मैं यही पूछूंगा कि प्रोजेक्ट कौन सा था, बट लेट्स से व्हाट वाज द रिसेंटली कैप्चर्ड बग, ओके, जो आपको याद आ रहा है कि ये बग या डिफेक्ट जो आपको लगा कि आपने रिपोर्ट किया था अपने डेवलपर को, ठीक है, तो बहुत मेजर लग रहा था, क्या था वो? इफ यू कैन जस्ट टेल अ लिटिल बिट ग्लिम्स ऑफ इट. रिसेंट तो नहीं था, बट मुझे एक बग मतलब हमेशा याद रहेगा कि एक URL काइंड ऑफ थिंग था. तो उसमें अगर आपने एक बार सबमिट कर लिया, ठीक है, एंड अगर वो आपने बुकमार्क कर ली URL, जब आप सबमिट करोगे ना आपका URL चेंज हो जाता था. बट अगर आपके पास वो बुकमार्क्ड URL है, तब भी आपको फॉर्म का स्क्रीन नहीं आना चाहिए था, आपको ये मैसेज आना चाहिए था कि यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द डिटेल्स फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्म.
बट उसमें क्या होता था कि URL अगर आपने बुक मार्क की है तो आप आपको फॉर्म डिस्प्ले हो जाता था, बट एक्सपेक्टेड ये था कि आपको फॉर्म डिस्प्ले आपको देखना चाहिए था या फॉर आई गॉट दैट एग्जांपल, लेट्स से इफ आई एम डूइंग अ पेमेंट और इन अ पर्टिकुलर टिकट्स फ्रॉम माय, मैंने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने के बाद अगर मैं वापस से वो यूआरएल पे हिट करूँ तो मुझे देखना चाहिए कि पेमेंट रिसीव, बट अभी भी वो चेकआउट पेज ही दिख रहा था या जो दिख रहा था. Okay, so that was a major issue, like kind of a stuff. Okay, that you have reported to the developer. Apart from that, ऐसा कुछ याद आ रहा है जो आपके डे टू डे एक्टिविटीज में और ऐड कर सकते हैं, या जो भी जो एज इन लाइक ऐसा और कोई बग आपको याद आ रहा है जो लग रहा है कि भाई ये मेजर प्रोडक्शन में जाके एक इशू क्रिएट कर गया? करंट प्रोजेक्ट में तो नहीं था. रसल में कुछ याद आ रहा है यार? अभी कुछ पटा? रसल में तो बहुत सारे इश्यूज हैं, लाइक उस वहाँ पे तो लॉगिन तक में इशू मिलेगा आपको, UI तक में मिल जाएगा. Okay. Just because the application is still under development, they haven't released it off into नो, इट्स ऑन प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन में सीधा फट. बट कॉन्ट्रैक्टर्स टेस्ट करते हैं ना, तो Okay, so that's the reason they brought it in house. राइट. All right. This is one thing. Acha, I'll ask this particular question because you know better, because you have answered it a lot of time. When the interviewer say, "Tell me about the framework that you have created," how do you answer that particular question? Okay. Just answer it the way you have always given the example. तो रट्टा हो गया होगा. पूरी क्या बोलते हो? अब नहीं हुआ ना, 2 महीने हो गए मुझे इंटरव्यू देते हुए. कुछ चलेगा, ठीक है. But इसको एक आंसर दे दो. इसको देना है तो कैसे? सो दे यूजुअली आस्क कि आपका फ्रेमवर्क कौन सा है, तो आई यूज्ड टू से कि हाइब्रिड है, मिक्सचर ऑफ कीवर्ड एंड डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क, एंड वी हैव यूज्ड SNG आल्सो. तो दे यूज्ड टू आस्क द फोल्डर स्ट्रक्चर. तो वी हैव 3 फोल्डर्स मेनली, मतलब मेन फोल्डर्स. उसके अलावा भी दूसरे फोल्डर्स हैं, यूटिलिटी, कॉन्फिग, ये वो. बट मेन 3 फोल्डर्स जो थे वो थे कि एक फोल्डर में वी यूज्ड टू राइट लोकेटर्स, एक में वी यूज्ड टू राइट स्टेप्स, एंड एक मेन टेस्ट. तो लाइक लोकेटर्स वाले फोल्डर का नाम होता था पेजेस, एंड स्टेप्स वेयर वी यूज्ड टू राइट द क्लिक ऑपरेशन. आई मीन हम लोग एक जेनरिक मेथड बना देते थे जो कॉमनली यूज्ड होता था. Got it. The browser utility kind of stuff. एंड टेस्ट, जिसमें तो वी यूज टू राइट टेस्ट एंड वी यूज टू इम्पोर्ट मेथड्स फ्रॉम स्टेप्स फोल्डर, एंड स्टेप्स फोल्डर में हम लोकेटर्स को करते थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिपोर्टिंग के लिए हम बताते थे कि वी आर यूजिंग एल्यूरे रिपोर्ट्स या एक्सटेंड रिपोर्ट्स, एंड हाउ आर वी पासिंग द डेटा एंड ऑल इन द फ्रेमवर्क. Sometimes it's Excel because I worked on multiple framework. तो एक Excel यूज़ किया था, या तो JSON फाइल Playwright में यूज़ करते हैं जहाँ से we used to pass the data. Okay, and config फाइल में username, password, सब URL and all we used to store. Got it. Got property files and all, you use it over there. Hmm. Yeah. Okay. Now, let's say, how do you think is the current job market right now for QAs, or let's say for automation? Actually मेरा तो यही कहना है कि अगर आपके पास स्किल्स है तो मार्केट हमेशा चालू ही है. चालू है, right? That's the thing. And okay, कुछ बड़ी बात हो. नहीं, सच में ऐसे लगता है मुझे. इवन अगर कोई ले ऑफ की भी बात करता है क्या कुछ, तो मेरे मन में यही आता है कि अगर आपके पास स्किल्स है तो कोई आपको हायर क्यों नहीं करेगा. बिल्कुल. And one thing over there, with so many tools and technologies which are always coming into picture, like sometimes UI करना है, API करना है, APM डालना है, you have to learn cloud, you have to learn performance testing, you have to learn, like so many things that comes with which आपको domain knowledge की भी जरूरत पड़ जाती है. But how do you feel, like how do you not get overwhelmed by these things? Okay. And still, like learn things fast. What would be your strategy, or how do you handle that kind of stuff? It's
मतलब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए. इट्स जस्ट यू गेट सम नॉलेज कि हाउ द थिंग्स वर्क्स इन प्लेराइट या हाउ इज द परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज डन. इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको पूरा घुस के वो पूरा इन डेप्थ में जाना है एंड नॉलेज लेना है. बट या अगर करंट प्रोजेक्ट में इफ़ यू आर गेटिंग अ चांस टू वर्क ऑन द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी तो आप वो डेप्थ में जा सकते हो बिकॉज इट्स यूजफुल फॉर योर प्रेजेंट. Okay. सो Okay. जस्ट मतलब बेसिक नॉलेज होना ही ज़रूरी है. इतना डेप्थ में यू डोंट नीड टू गो इफ अनलेस एंड अनटिल यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट इन योर प्रोजेक्ट.